Hello students and welcome to your English language class. Today we'll be taking up the last chapter of First Flight, The Proposal, written by Anton Chekhov. The Proposal, originally titled A Marriage Proposal, is a one-act play, a farce by the Russian short story writer and dramatist Anton Chekhov, written in 1888. This one act play is about the tendency of wealthy Russian families or people to seek marriage ties with other wealthy families or people to increase their estates or properties by encouraging marriages that make good economic sense. Ivan Lomov comes to seek the hand of Chubukov's 25-year-old daughter, Natalia. All three are quarrelsome. They quarrel over petty issues. The proposal is in danger of being forgotten amidst all this quarreling. But the economic good sense ensures that the proposal is made successful, although the quarreling perhaps continues. Okay, so let us start reading from the text. The proposal. The word proposal has several meanings. Can you guess what sort of proposal the play is about? So basically, this chapter, the proposal is actually the act of asking someone's hand in marriage. It's a marriage proposal. Okay, जैसे कहते हैं ना शादी के लिए रिश्ता लेकर जाना. Okay, so that's kind of a proposal because it's up to the bride's family or the bridegroom's family whether they accept this proposal or not, whether they find the person suitable for their daughter or son or not. Okay, so it's kind of a proposal. A Russian wedding. Now, do you know anything about a Russian wedding? Read this article about a Russian wedding. Preparations for a Russian wedding. A Russian wedding is very simple. The planning only includes arranging for rings. जैसे हमारे यहाँ बेटा शादी में 7 फेरे होते हैं, वैसे वहाँ पे क्या होता है, दे एक्सचेंज देयर रिंग्स. ओके, एक दूसरे को रिंग्स पहनाते हैं. जैसे हमारे यहाँ रिंग सेरेमनी होती है शादी से पहले, तो वो उनके यहाँ जो है वो फाइनल सेरेमनी उनकी वही होती है. ओके, वो सिर्फ एक दूसरे को रिंग्स पहनाते हैं और जो प्रीस्ट होता है वो आके उनसे कुछ वाउज लेता है, वो कुछ वचन देते हैं एक दूसरे को और फिर आई डू बोलकर शादी हो जाती है. सो द प्लानिंग ओनली इंक्लूड्स अरेंजिंग फॉर रिंग्स, bride's dress, cars, and a reception. Okay, but nowadays brides and grooms families. Okay, earlier the bride's family paid for the reception, but nowadays brides and grooms families usually share expenses. अब ये तो इंडिया में भी होता है कि ब्राइड और ब्राइड ग्रूम की जो फैमिलीज़ हैं वो जितना भी खर्चा होता है उसको आपस में वो शेयर कर लेते हैं. ठीक है, लेकिन पहले क्या होता था, इट वॉज द ब्राइड्स फैमिली हु यूज्ड टू बेयर ऑल द एक्सपेंसेस. राइट, जितना भी खर्चा होता था शादी का वो दुल्हन की जो फैमिली है वो ही बेयर करती थी. बट नाउ इन मॉडर्न टाइम्स द थिंग्स आर चेंजिंग. ओके, सो द ब्राइड ग्रूम्स are proposing to bear the expenses. Now, a Russian wedding lasts for 2 days. Some weddings last as long as a week, and the occasion becomes something to remember for years. तो कुछ लोग तो इसको एक दिन में 2 दिन में वाइंड अप कर देते हैं मैरिज सेरेमनी को, बट सम पीपल लाइक टू enjoy and they like to be with their family and relatives. Okay, और छोटी छोटी जितनी भी रस्में होती हैं उनको, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस जो भी हैं उनको प्रॉपरली वो फॉलो करते हैं. सो इट गोज़ ऑन फॉर अ वीक और सो. द नेसेसरी पार्ट ऑफ द वेडिंग सेरेमनी इज़ अ वेडिंग प्रोसेशन ऑफ सेवरल कार्स. जैसे हमारे यहाँ बारात जाती है ना, तो वैसे ही वहाँ पे दे हैव दिस प्रोसेशन ऑफ सेवरल कार्स. ओके, पूरी एक कॉन्वॉय जो होती है कार की वो ऐसे चलती है. The best friends of the groom or bride meet before the wedding a few times, make posters, write speeches, and organize contests.
तो दोनों साइड के जो जैसे ब्राइड के जो फ्रेंड्स हैं और ब्राइड ग्रूम के जो फ्रेंड्स हैं वो आपस में एक दूसरे से मिलते हैं. दे प्लान आउट एवरीथिंग, दे राइट स्पीचेस, दे मेक पोस्टर्स. ओके, और एक दूसरे के बारे में जानते हैं. एक जैसे अगर ब्राइड ग्रूम के फ्रेंड्स हैं, दूल्हे के जो दोस्त हैं वो दुल्हन की जो सहेलियां हैं उनसे दुल्हन के बारे में थोड़ा ज़्यादा पता करते हैं कि क्या उसकी हॉबीज़ हैं, क्या लाइकिंग्स हैं, क्या डिसलाइक करती है वो, एंड एक्सेट्रा. ओके, when the groom arrives to fetch the bride for the registration, he has to fight to get her. अच्छा, वहाँ पे एक ये भी रस्म है कि जब ग्रूम आता है, जो दूल्हा है आता है दुल्हन को लेने के लिए, जब रजिस्ट्रेशन होता है उनका, मैरिज रजिस्ट्रेशन, तो उसको फाइट करनी पड़ती है टू गेट हर. रशियंस यूजुअली लिव इन अपार्टमेंट्स इन टॉल बिल्डिंग्स एंड द ग्रूम हैज़ टू क्लाइम सेवरल स्टेयर्स टू रीच हिज ब्राइड. अब रशियंस यूजुअली टॉल बिल्डिंग्स में रहते हैं, छोटे छोटे अपार्टमेंट्स में. सो ग्रूम को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है टू क्लाइम ऑल द स्टेयर्स टू गेट टू हर. ओके, और फिर बट एट ईच लैंडिंग ही मस्ट आंसर अ क्वेश्चन टू बी अलाउड टू गो अप. ओके, और वहाँ पे जैसे एक हर्डल रेस होती है ना, तो हर एक जैसे एक फ्लोर चढ़ने के बाद वहाँ पे कोई ना कोई खड़ा रहता है, फिर वो उससे क्वेश्चन पूछता है. अगर वो करेक्ट आंसर देता है तभी उसको आगे जाने देते हैं, अदरवाइज वहीं रोक लेते हैं. द ब्राइड्स फ्रेंड्स आस्क डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, समटाइम्स अबाउट द ब्राइड, समटाइम्स जस्ट डिफ़िकल्ट रिडल्स. तो जो दुल्हन की सहेलियाँ होती हैं वो वहाँ पे हर्डल का काम करती हैं. ओके, और वहाँ पे खड़ी हो जाती हैं, उनका रास्ता रोकती हैं दूल्हे का, और फिर उससे पूछती हैं ब्राइड के बारे में, कुछ क्वेश्चंस पूछती हैं, या फिर जनरली कोई भी डिफ़िकल्ट रिडल, कोई भी पहेली इस टाइप की पूछती हैं. एंड द ग्रूम मस्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड्स. और ग्रूम जो है, दूल्हा जो है, वो अपने दोस्तों की मदद ले सकता है आंसर करने में. फॉर एग्जाम्पल, ही मे बी शोन अ फ्यू फोटोज़ ऑफ बेबी गर्ल्स एंड ही मस्ट से विच वन हिज ब्राइड इज़. जैसे कि क्या करेंगे, एक फ़ोटोग्राफ है, उसमें बहुत सारी छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, बेबी गर्ल्स हैं. ओके, तो मे बी उसकी वो कोई चाइल्डहुड फोटोग्राफ है और उसमें सारी फ्रेंड्स हैं, तो उसमें से ही हैज़ टू पॉइंट आउट विच वन इज़ हिज ब्राइड टू बी. इफ़ ही गेसेस रॉन्ग ही मस्ट पे कैश टू मूव अहेड. और अगर वो गलत जवाब देता है तो उसको कैश पे करना पड़ता है, देन ओनली ही विल बी अलाउड टू मूव फर्दर. After the marriage registration, the newly married couple leaves the guests for a tour of the city sights. जब मैरिज रजिस्ट्रेशन हो जाता है, आपने मे बी मूवीज़ में भी देखा होगा, दे गो फॉर अ राइड. ठीक है, वो कार में बैठते हैं दोनों दूल्हा दुल्हन, सिर्फ दूल्हा दुल्हन जो है वो कार में बैठते हैं एंड दे गो फॉर अ शॉर्ट ट्रिप, ओके, अराउंड द सिटी. और बाकी सब वहीं जहाँ पर भी अगर चर्च में हो रही होती है शादी तो वहीं चर्च में रुक जाते हैं, फिर वहाँ से डिस्पर्स होते हैं. ओके, या फिर मैरिज रजिस्ट्रार का जो ऑफिस है वहाँ पे अगर शादी होती है तो फिर वहाँ से वो लोग डिस्पर्स होते हैं. आफ्टर 2 or 3 hours of the city tour, the couple arrives at the reception. वो 2-3 घंटे ज़रा सिटी का चक्कर मार के और वापस रिसेप्शन जो उनका अरेंज हुआ होता है वहाँ पर आते हैं, द वेन्यू of the reception. The couple sits at a specially arranged table with their family, friends and invited guests. और जो कपल है वो आके उनके लिए जो एक स्पेशली अरेंज्ड टेबल होती है वो वहाँ पे आके बैठते हैं अपने फैमिली, फ्रेंड्स और जो भी वहाँ पे इनवाइटेड गेस्ट्स होते हैं उनके साथ. द रिसेप्शन स्टार्ट्स विद टोस्ट्स टू द कपल. अब वहाँ रिसेप्शन की जो शुरुआत होती है वहाँ पे क्या करते हैं, जो वाइन होती है उससे टोस्ट किया जाता है. ओके, और फिर वेडिंग टोस्ट इज़ अ कस्टम वेयर अ क्लोज फ्रेंड और रिलेटिव ऑफ द ग्रूम और द ब्राइड सेज अ फ्यू वर्ड्स टू विश द कपल. ठीक है, जो भी टोस्ट करता है वो ब्राइड या दोनों के बारे में, कपल के बारे में कुछ ना कुछ बोलता है. ही स्पीक्स अ फ्यू वर्ड्स अबाउट दैम. Then everyone raises their glass of wine and drink it up at the same moment. Okay, the groom is then asked to kiss the bride. After a few toasts, people start eating and drinking and generally have fun. और कुछ टाइम के बाद वो सब बैठ के डिनर करते हैं. After some time, the bride gets stolen. Okay, जैसे हमारे यहाँ जूता छुपाई की रस्म होती है, ठीक है, सालियाँ जो हैं वो जीजा का जूता छुपाती हैं, वैसे ही वहाँ पे दुल्हन को ही छुपा दिया जाता है.
शी डिसअपियर्स एंड व्हेन द ग्रूम स्टार्ट्स लुकिंग फॉर हर ही इज़ आस्क्ड टू पे अ फी. और जब दुल्हन नहीं मिलती है तो दुल्हन के बदले में कैश की डिमांड की जाती है, ऑब्वियसली बाय ब्राइड्स फ्रेंड्स. ओके, यूजुअली इट इज़ हिज फ्रेंड्स हु स्टील द ब्राइड. ओके, जो ब्राइड ग्रूम है उसके जो फ्रेंड्स हैं वो ब्राइड को छुपाते हैं. देन देयर आर द ब्राइड्स फ्रेंड्स, दे स्टील द ब्राइड्स शू. और जो दुल्हन की फ्रेंड्स हैं वो दुल्हन के जूते छुपा देती हैं. द ग्रूम मस्ट पे मनी फॉर द शू टू. और जो ब्राइड ग्रूम है उसी को दुल्हन के शूज़ के लिए भी पे करना पड़ता है. द गेस्ट एंजॉय वॉचिंग दीज टसल्स एंड कंटिन्यू पार्टिंग. ठीक है, और ऐसे ही ये दे हैव फन and they enjoy all these customs and all these ceremonies, right? Now, do you think Indians and Russian weddings have any customs in common? With the help of a partner, fill in the table below. अब यहाँ पे कुछ ये एक कॉलम दिया हुआ है आपको, जिसमें एक तरफ लिखा है कस्टम्स सिमिलर टू इंडियन वंस एंड कस्टम्स डिफरेंट फ्रॉम इंडियन वंस. तो जो वेडिंग सेरेमनीज होती है रशिया की, अभी हमने जो इसमें पढ़ा है आर्टिकल में, so according to that you can write a few differences between the wedding ceremonies in Russia and India. Okay, now the proposal, originally titled A Marriage Proposal, is a one act play, a farce by the farce मतलब एक सटायर होता है, जैसे कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ किसी का एक ह्यूमरस sort of a play. Okay, by the Russian short story writer and dramatist Anton Chekhov. It was written in 1888-89. Now, okay, I've read this before, so let's move on. So here the characters are Stepan Stepanovich Chubukov. Okay, it's a tongue twister sort of a name, and he's the landowner. Okay, and next is Natalia Stepanovna, his daughter, 25 years old. Okay, and third is Ivan Vasilievich Lomov, a neighbor of Chubukov, a large and hearty but very suspicious landowner. सो बेसिकली ये स्टोरी है एक फादर और डॉटर. फादर का नाम है यहाँ पे जो चुबुकॉव. ओके, शॉर्ट में उसको चुबुकॉव ही बोला गया है, दैट्स हिज सरनेम. सो चुबुकॉव जो है वो एक लैंड ओनर है, उसकी एक 25-year-old डॉटर है नतालिया. ओके, सो ये तो फादर एंड डॉटर डुओ ये एक घर में रहते हैं, और उनके नेक्स्ट डोर नेबर हैं लोमोव. ओके, लोमोव जो है वो 35-year-old गाय है, एंड ही इज़ लुकिंग फॉर अ ब्राइड. ठीक है, वो जल्दी शादी करने की सोच रहे हैं, सो ही इज़ लुकिंग फॉर अ गर्ल. अ ड्राइंग रूम इन चुबुकॉव्स हाउस. अब ये पूरा प्ले का जो सेटअप है वो उसमें ड्राइंग रूम में है. जो चुबुकॉव के घर में ड्राइंग रूम है उसमें ही है. अ ड्राइंग रूम इन चुबुकॉव्स हाउस. लोमोव एंटर्स वेयरिंग अ ड्रेस जैकेट एंड वाइट ग्लव्स. चुबुकॉव राइजेस टू मीट हिम. अब लोमोव जो है वो उसने एक, जैसे कि नेक्स्ट पेज पे पिक्चर दी हुई है, एक ड्रेस जैकेट उसने पहनी हुई है और वाइट ग्लव्स पहने हुए हैं. ठीक है, तो चुबुकॉव खड़े होते हैं उनसे मिलने के लिए, लोमोव से. सो नाउ चुबुकॉव सेज, माई डियर फेलो हुम डू आई सी. अच्छा, वो कहता है कि अरे माई डियर फेलो, मैं किसे देख रहा हूँ? Ivan Vasilievich. I'm extremely glad. Squeezes his hand. Now this is a surprise, my darling. How are you? So Chubukov is definitely quite pleased to see Ivan at his house. Okay, and he's greeting him with all his heart. और बड़े प्यार से उसको वेलकम करते हैं. So Lomov says thank you and how may you be getting on. कि मुझे इतना अच्छा वेलकम करने के लिए थैंक यू, और आप कैसे हैं, यहाँ सब कैसा चल रहा है, वो पूछता है. सो चुबुकॉव सेज, वी जस्ट गेट अलोंग सम हाउ. अच्छा, ओके, मे बी ही इज़ आस्किंग कि आपका और आपकी बेटी के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कैसा चल रहा है, क्योंकि जैसा कि यहाँ इंट्रोडक्शन में ही मेंशन था, दे आर क्वाइट क्वारलसम.
ओके वो काफ़ी लड़ते झगड़ते रहते हैं. सो दैट्स वाई वो नेक्स्ट डोर नेबर है तो उसको मे बी आवाज़ें आती होंगी, उसको सुनाई देता होगा. सो ही इज़ जस्ट आस्किंग कि हाउ आर यू गेटिंग अलॉन्ग. थैंक्स टू योर प्रेयर्स एंड सो ऑन. सिट डाउन प्लीज़ डू. नाउ यू नो यू शुडंट फॉरगेट ऑल अबाउट योर नेबर्स माई डार्लिंग. वो बड़े प्यार से उसे कहते हैं कि तुम्हें अपने नेबर्स को भी याद रखना चाहिए, तुम्हें मिलने आना चाहिए. माई डियर फेलो, वाई आर यू सो फॉर्मल इन योर गेटअप, इवनिंग ड्रेस, ग्लव्स एंड सो ऑन. ओके और वो उसे कहते हैं कि तुम इतना फॉर्मली ड्रेस्ड अप होकर क्यों आए हो, तुमने कि जैकेट पहना हुआ है और प्रॉपर इवनिंग ड्रेस में हो, ग्लव्स वगैरह पहन के. वाई आर यू ड्रेस्ड अप सो फॉर्मली. कैन यू बी गोइंग एनीवेयर माई ट्रेजर. और वो कह रहे हैं क्या तुम कहीं बाहर जा रहे हो. Solomov replies, No, I've come only to see you, honored Stepan Stepanovich. अब वो कहते हैं नहीं नहीं मैं तो सिर्फ आप ही से स्पेशली मिलने के लिए आया हूँ और इसीलिए मैं थोड़ा फॉर्मली ड्रेसअप होकर भी आया हूँ. Then why are you in evening dress, my precious, as if you are paying a New Year's Eve visit. तो वो कहते हैं कि तुम इतना फॉर्मली ड्रेसअप होके एक इवनिंग ड्रेस पहनकर आए हो एज इफ कोई न्यू ईयर्स ईव पे जैसे आता है मिलने के लिए. Solomov says, well, you see, it's like this. Takes his arm. उसका हाथ पकड़ के जो चुबुकॉव हैं उनका हाथ हल्के से पकड़ के और कहते हैं कि I've come to see you, honored Stepan Stepanovich, to trouble you with a request. Not once or twice have I already had the privilege of applying to you for help, and you have always, so to speak, I must ask your pardon. I'm getting excited. I shall drink some water, honored Stepan Stepanovich. अब ये थोड़ा हेजिटेंट हो रहा है लोमोव. ही इज़ नॉट एबल टू स्पीक हिज हार्ट आउट. समहाउ वो अपनी फीलिंग्स को प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है और वो बीच में रुक रुक के बात कर रहा है और वो कह रहा है कि मैं आपको एक दो बार पहले भी परेशान कर चुका हूँ और आपने मेरी हमेशा हेल्प की है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. आई डोंट हैव वर्ड्स टू से कि मुझे एक्चुअली आपसे क्या बात करनी है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है. दैट सॉर्ट. ओके फिर वो पानी के लिए बोलता है कि मुझे आई थिंक आई शुड ड्रिंक सम वाटर फर्स्ट. तो उसको पानी दिया जाता है ऑब्वियसली, तो वो पानी पी रहा होता है. चुबुकॉव सेज, धीरे से चुबुकॉव साइड में, जैसे प्ले चल रहा है, इमेजिन करो दो लोग बात कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा ऐसे चुबुकॉव साइड में जैसे कि ऑडियंस को सुनाने के लिए साइड में होके बोल रहा है. ही इज़ कम टू बोरो मनी, शैंट गिव हिम एनी. ओके चुबुकॉव कहते हैं हाँ ये पैसे ज़रूर पैसे बोरो करने के लिए आया होगा लेकिन मैं इसे दूंगा नहीं. और फिर उसकी तरफ टर्न करके कहते हैं व्हाट इज़ इट माय ब्यूटी. जैसे ना एक तरफ कुछ सोच रहे हो आप दिमाग में, दूसरी तरफ आप कुछ और प्रिटेंड कर रहे हो. तो चुबुकॉव बड़े स्वीटली उससे कहता है कि क्या बात है स्वीटी ब्यूटी. लोमोव, यू सी ऑनर्ड स्टेपनिच, आई बेग पार्डन स्टीपन ऑनरिच. ओके ही इज़ गेटिंग ऑल फंबल्ड अप. ठीक है वो दोनों वर्ड्स को मिक्सअप करके कुछ तो बोल रहा है. I mean, I'm awfully excited, as you will. Please notice. In short, you alone can help me, though I don't deserve it, of course, and haven't any right to count on your assistance. अब वो काफ़ी कंफ्यूज्ड है और बड़ा एक्साइटेड वे में उससे बात कर रहा होता है चुबुकॉव से और कहता है कि सिर्फ आप ही मेरी हेल्प कर सकते हैं और लेकिन मैं डिज़र्व नहीं करता आपकी हेल्प, बट आपके अलावा मैं और किसी से बात नहीं कर सकता. सो चुबुकॉव से ओ डोंट गो राउंड एंड राउंड इट डार्लिंग, स्पिट इट आउट वेल. वो कहते हैं क्यों बात को घुमा रहे हो, सीधा सीधा पॉइंट पे आओ, जो भी बात है सीधी सीधी मुझे बोलो. Solomov says, one moment, this very minute. The fact is, I have come to ask the hand of your daughter, Natalia Stepanovna, in marriage. So finally, वो अपनी जो बात रखने आया था वो क्लियरली उसको बोल देता है दैट आई हैव कम टू आस्क फॉर द हैंड ऑफ योर डॉटर इन मैरिज. ओके कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ और मैं उसी का हाथ मांगने के लिए यहाँ पर आया हूँ. ओके so I hope you've understood till here. We'll be reading the play in the next class. Okay so till then you just go through this play and try to understand this and mark all the difficult words and try to find their meanings from the dictionary. Okay so thank you for watching this video.